Good morning, everyone. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. So, students, today we are just going to start the chapter number 8 of Geography. And what is the name of this chapter? Climate, Vegetation, and Wildlife. Repeat after me. Climate, vegetation, and wildlife. So, beta, before I'm going to start this chapter, I just want to say this. It is very, very important to understand this chapter. You have to watch full video at least thrice. पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कम से कम 3 टाइम्स देखें. गॉट इट? If you have any problem in a particular word, so you can check, underline, first of all underline that word and check from the dictionary. And if you don't have dictionary, you can ask from the Google as well. Whenever you are just watching this video, take your textbook, take a pencil, अंडरलाइन दैट लाइन इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट लाइन. ठीक है, आप एक जब भी आप ये वीडियो देखें अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे, लाइन टू लाइन वीडियो देखेंगे, साथ के साथ अंडरलाइन करेंगे बुक में अपनी पेंसिल से. नोबडी विल यूज़ द पेन. पेंसिल से बुक में अंडरलाइन करेंगे जो भी वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा. ओके, सो शैल वी स्टार्ट. सो बेटा, इन दिस चैप्टर द फर्स्ट इज लर्निंग ऑब्जेक्ट्स. हम क्या क्या इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे? Basically, beta, this chapter name is Climate, Vegetation and Wildlife. Climate means Jalvayu, vegetation means Vanaspati, and the wildlife means Vanyajeevan. Got it? So, in this chapter, learning objects are factors affecting the climates. These are the factors who are affecting our climate. So, beta, this is the learning object. After that, we can discuss about what is the meaning of climate. Distance from the equator, the altitude from the mean sea level, distance from the sea, direction of the wind, surface of the earth and direction of mountain, the seasons. There are basically four seasons: the winter season, summer season, monsoon season, retreating monsoon, natural vegetation, tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation, mangrove forest, conservation of forest, wildlife, preservation of wildlife. So beta, in this chapter, the climate of a place make a huge difference to the people who live there. Very cold climate make it possible for a people live at a place, and very hot and dry place may be so affecting the feasibility of habitation. There is no permanent habitation in Antarctica, although water is available. Same is the case of high mountain at the Alp and the Greater Himalaya. The availability of water and the right temperature both have a direct relation with the human survival. In this chapter, बच्चे, we shall study about the climate, vegetation and wildlife in India. So students, factor affecting the climate, in all the previous chapters you have studied the India is situated in the northern hemisphere. Where India is situated? India is situated in the northern hemisphere. You also know that the inclination of earth and the revolution around the sun are responsible for changing the seasons. आपको मैंने बताया था rotation and revolution. So the inclination of revolution, sun are the responsible for changing the season. कौन responsible इसके लिए? Sun. If you recall that, it is also show how the part of the earth and the northern hemisphere get more heat in the month of, कब हीट निकलती है? मई टू जुलाई. अभी तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है गर्मी. सो मई टू जुलाई एंड द मच लेसर हीट इन द मंथ्स ऑफ नवंबर टू जनवरी. यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सन कब लगता है, सन की रेस कब लगती है? मई टू जुलाई. और कम से कम आपको हीट कब मिलती है? नवंबर टू जनवरी. दिस इज़ हाउ द 4 सीजन्स नेमली समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग are formed in the cycle of 1 year. While the seasons are defined
and have a fixed pattern. Beta, the seasons have some seasons have a fixed pattern for a whole of hemisphere or a local conditions affecting the climate. Basically beta, climate is that average weather condition measure over many years. Like आप देखते हो in a January, May, April to May, June month there is a टफ समर देखते हो आप, बहुत धूप निकल रही होती है. आफ्टर दैट आप देखते हो मानसून आ जाता है. देन स्टार्टिंग टू नवंबर एंड जनवरी क्या रहता है आपका विंटर सीजन रहता है. देन उसके बाद रिट्रीटिंग मानसून रहता है. सो दीज आर द क्लाइमेट इज अ सीजन डिफाइंड हैव द फिक्स पैटर्न. एक पैटर्न चल रहा है, समर मानसून विंटर ऑटम, समर मानसून विंटर. ठीक है. सो बेसिकली एक फिक्स पैटर्न चलता है. सो होल ऑफ हेमिस्फीयर लोकल कंडीशन आर कॉल्ड द क्लाइमेट. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन अफेक्टिंग बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. बेटा ये क्लाइमेट पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये क्लाइमेट वरी टू वरी, चेंज टू चेंज होता है. इफ़ यू आर गोइंग इन अ कश्मीर प्लेस, सो आपको वहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट मिलेगा. व्हेन यू आर गोइंग एट द अंटार्कटिका, वहाँ पे आपको डिफरेंट क्लाइमेट मिलेगा. व्हेन यू आर गोइंग टू द राजस्थान देर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट क्लाइमेट. व्हेन यू आर गोइंग टू द तमिलनाडु तो देर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट क्लाइमेट. सो हर एक एरिया का, हर एक जगह का एक डिफरेंट क्लाइमेट मिलता है. एंड सम आर द फैक्टर्स हु आर अफेक्टिंग द क्लाइमेट्स. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ लैटिट्यूड or distance from the equator. Beta, equator, earth, there is an imaginary line on the earth, that is the equator. ठीक है. The second is the altitude of the high from the mean of sea level. The distance from the sea, यानी कि जो एरिया सी से पास है, नियर है, फार है, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा. द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, द सरफेस ऑफ अर्थ विच इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज और ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड्स, यानी कि विंड्स कहाँ से आ रही हैं. बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेटा, यू हैव लिसन वन अनदर वर्ड दैट इज़ वेदर. हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदर. सो बेटा, द क्लाइमेट इज़ एवरेज वेदर कंडीशन मेजर्ड ओवर अ मैनी ईयर्स और अ लॉन्ग टाइम. क्लाइमेट ऐसा होता है जो एक ही जैसा मौसम काफ़ी समय तक रहता है, दैट इज़ अ क्लाइमेट. और वहीं पर वेदर क्या है? वेदर इज़ अ डे टू डे चेंजेस इन एटमोसफेयर. लाइक वेदर इज सपोज टू बी द शॉर्ट ड्यूरेशन फिनोमिना. वेदर का फिनोमिना कैसा है? शॉर्ट ड्यूरेशन फिनोमिना है. लाइक वेदर इज चेंजेस आवरली और डेली ऑल्सो. वेदर कैसा होता है? डेली और आवरली भी चेंज हो सकता है. लाइक इफ़ यू नोटिस इन द वेदर सीजन, इफ़ यू नोटिस दैट इन वेदर, आप पॉसिबिलिटीज़ करते हो कि जैसे अभी रेन हो रहा है, फॉग हो रहा है, एटसेट्रा ऑन अ स्पेसिफिक डे. लाइक इन अ समर, अभी विंटर्स में क्या है? समटाइम यू कैन सी दैट कि आज मौसम सनी है, धूप निकल रही है. समटाइम ये फिनोमिना आपको दिखता है कि रेनी मौसम सा हो रहा है. समटाइम आपको फॉग लगती है. सो दिस इज़ द वेदर. ठीक है. क्लाइमेट इज बेसिकली ऑन द अदर हैंड, क्लाइमेट इज अ पैटर्न विच इज़ फॉलोड ओवर द ईयर्स. क्लाइमेट कैसा है? बहुत समय तक, लंबे समय तक एक जैसा रहता है. क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेदर, एवरेज टाइप ऑफ वेदर ऑन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर. जैसे बेटा हम कह सकते हैं कि वेदर इट्स लाइक अ सनी, क्लाउडी, रेनी. ठीक है. एंड क्लाइमेट इज अ समर, विंटर, ऑटम, मानसून. ठीक है. सो शैल वी स्टार्ट अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. So you know that the heat energy received varies and we move away from the equator. आपने देखा होगा कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी मिलती है. As we rise higher in altitude, यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते रहेंगे, the distance from the sun receive, this causes lesser heat being received from the sun. और जैसे जैसे हम डिस्टेंस में ऊपर चढ़ते रहेंगे, हमें हीट जो है वो कम मिलनी शुरू होगी. You know that during in summer in the northern hemisphere sun is directly over the tropic of Cancer. ये मैंने आपको सीजन्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि समर सीजन में जो हमारा सन है उसकी डायरेक्टली रेज कहाँ पे पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ कंट्री। जैसे हमारी कंट्री से कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस रीजन above the tropic of cancer get cold winters and warm summers। यानी कि जो भी एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, लाइक कश्मीर टू अगर आप कहें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला एमपी वाला जो रीजन है, वहाँ पर आपको समर्स में बहुत गर्मी मिलेगी एंड विंटर्स में बहुत ठंड मिलेगी। So if you further move from the latitude towards the Kashmir, the colder it gets, while the region below the Tropic of Cancer does not get serve winter and remains warm। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ लाइन से नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर आपको ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी इन समर्स, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी इन विंटर्स। गॉट इट? The next factor is the altitude from the mean sea level। As a rise we above the sea level, temperature falls। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर चलते रहते हैं, यानी समुद्री सतह से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर गिरने लगता है। गिरने मतलब क्या लगता है? ठंडा होने लगता है। इन द हिल स्टेशन आर कूलर देन द सराउंडिंग एरिया, ऑब्वियसली दैट्स वाई पीपल आर गोइंग टू द समर वेकेशन में सभी लोग हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट टाइम हिल स्टेशन इज मच कूलर देन अ प्लेन एरिया। प्लेस लाइक माउंट आबू इन राजस्थान and Ooty in Tamil Nadu are much cooler than the area around them just because the higher in altitude। यानी कि जितनी हम ऊंचाई पे माउंटेन वाली जगह पे चढ़ेंगे, टेम्परेचर नीचे गिरेगा। Every 165 meter of altitude there is a decrease in temperature of 1 degree Celsius। यानी कि जैसे 165 डिग्री ऊपर जाते ही मीटर ओनली 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिरता है। सेम इन द केस ऑफ हिल्स इन हिमाचल प्रदेश which are nearly in the same altitude as पंजाब but are cooler due to higher altitude। अगर हम कहें तो हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब का बिल्कुल साथ साथ में बने हुए हैं, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, बट अकॉर्डिंग टू द हायर एल्टीट्यूड पंजाब इज़ लेस कूलर देन हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में डिफरेंस यही आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश हाईली एल्टीट्यूड पे है, इसीलिए उसका टेम्परेचर भी कम होता है। गॉट इट? द थर्ड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब ये भी डिपेंड करता है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द क्लाइमेट। ये भी एक फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। द अर्थ सरफेस गेट वार्म फास्टर देन कूल्स एज कंपेयर टू वाटर। हमने ये देखा कि अर्थ सरफेस क्या है, जल्दी वार्म एंड ठंडी हो जाती है एज कंपेयर देन वाटर। व्हेन द अर्थ हीट अप द कूल ब्रीज मीन्स अ सॉफ्ट विंड, ठीक है, जिसे हम पवन समीर कहते हैं, बिल्कुल अच्छी सुहावनी हवा, ठीक है। When the earth heat up, the cool breeze from the sea cools the land in the coastal areas, and therefore the areas close to the shore are cooler than those for far away। यानी कि जो भी एरिया बेटा कोस्टल रीजन कौन से? द रीजन हु आर नियर बाय द कोस्ट, ये किसी भी वाटर बॉडी के नियर बाय है, लाइक किसी भी ओशन एंड सी के नियर बाय एरियाज़ को हम कोस्टल रीजन कहेंगे। इन दैट केस बेटा हीट अर्थ क्या होती है, जब हीट हो जाती है तो वो किससे रिफ्लेक्ट होके, सी के वाटर से रिफ्लेक्ट होके उसको ठंडी हवा में कन्वर्ट कर देती है, कूल ब्रीज में कन्वर्ट करती है। तभी ये देखा गया है कि द एरिया हु आर नियर बाय द कोस्टल एरिया वो काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है, एज कंपेयर देन द अदर एरिया इट्स फार फ्रॉम शोर। The next point is direction of the wind. This is also a factor who are affecting the climate. Wind blow in the different direction on the earth surface। हमने देखा कि विंड्स कैसे कैसे चलती है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि विंड कैसे चलती है डिफरेंट डायरेक्शंस में।
However, the directions keep changing due to the various reasons. Movement of the wind over the surface affect the temperature of the place. Cold wind cool the surface and wind warms are the सरफेस. बेटा थोड़ा सा टिपिकल है बट अंडरस्टैंड कीजिए. मूवमेंट ऑफ द विंड यानी कि विंड की मूवमेंट अफेक्ट करती है टेम्परेचर को. ठीक है, यानी कि जब हवा चलती है तो टेम्परेचर गिरता है, हवा कम चलती है तो टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ द प्लेस. कूल विंड यानी ठंडी हवाएं चलती है तो कूल विंड कूल द सरफेस एंड द वार्म विंड वार्म द सरफेस. यानी ठंडी हवा चलेगी तो सरफेस कैसा होगा, ठंडा होगा. अगर गर्म हवा चलेगी तो सरफेस कैसा होगा, गर्म होगा. इट इज़ ऑब्वियस. ब्लोइंग ऑफ विंड आर ऑल्सो हेल्प टू मूव द क्लाउड एंड कॉजेज रेन. यानी कि विंड के बहने से भी, विंड के ब्लो होने से भी किस में हेल्प मिलती है, क्लाउड्स बनने में और रेन आने में. ये तो हमने वाटर साइकिल में भी पढ़ा है. वाटर साइकिल पढ़ा है ना आपने. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, देन रेन, evaporate, condensation, making cloud and then rain. So these are the water cycle जो आपने ऑलरेडी साइंसेज में और प्रीवियस में भी आपने पढ़ा हुआ है. So basically बेटा surface of the next is the surface of the earth and direction of mountain. This is the last factor who are affecting the climate कि अर्थ का सरफेस कैसा है और माउंटेन्स कौन सी डायरेक्शन में है. Open land allow wind to pass through without any obstruction and do not stop the cloud they bring along. यानी कि ओपन एरिया में कोई भी बैरियर नहीं होता तो ओपन एरिया में विंड जो है वो बहुत अच्छे से फ्लो होती है, अच्छे से ब्लो होती है, क्लाउड्स जो है वो बनते हैं. बट इन माउंटेन्स कैन बिकम अ बैरियर्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट थ्रू मूवमेंट ऑफ डिफ्लेक्ट देयर डायरेक्शंस. जैसा कि मैंने अभी बताया कि माउंटेन एरियाज़ में क्या होता है, इट्स लाइक अ बैरियर, एक वॉल जैसा रहता है जिसकी वजह से क्लाउड्स एंड विंड जो है वो एक साइड में रुक जाती हैं. ऑन द मैप नोटिस द ऑल द अरावली हिल्स आर साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. अगर बेटा हम मैप में देखेंगे सो जितने भी हम देख रहे हैं अरावली हिल्स जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है एंड दे डू नॉट कॉज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू विंड्स कमिंग फ्रॉम सी, अरेबियन सी. और इसीलिए हमें कोई भी अरेबियन सी से आने वाली हवाएं रोका नहीं करती. ऑन द अदर हैंड द माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ट्रैप द विंड्स आर हिल ब्लॉक दैम फ्रॉम 3 साइड्स. और वहीं अगर हम दूसरे साइड में देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आप देखते हो वहाँ पे हिमालयज़ हैं, वहीं से अगर जो विंड आ रही है वो उस विंड को 3 साइड से ब्लॉक कर लेती हैं. बेटा इट इज़ लिटिल बिट टिपिकल, थोड़ा सा टिपिकल है टू अंडरस्टैंड. बट अगर आप इसे रीड करेंगे, पढ़ेंगे, वीडियोस को दोबारा देखेंगे तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. एंड बेटा टुडे यू हैव अ lot of things to help you in understand this chapter. आप YouTube पे जाइए, आप ये सारी चीज़ें देखिए कि how the factors affecting the climates. आपको वीडियोज़ में बहुत और अच्छे से समझ आएगा. Got it? So we can rest the class here only. These are the keywords you have to do in your notebook. So we can discuss the keyword also. We can discuss the keywords. These keywords you have to do in your notebook with the help of pen. Okay, and all of you use the black and blue pen only, blue ball pen. Nobody will use the gel pen. First is climate. What is that climate? We have already read about this. Average weather condition measured over the many years. Weather, day to day changes in atmosphere, this is called a weather. लू आपने सुना ही होगा, कब चलती है, इन अ समर सीजन. हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग द समर सीजन. यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स पर समर सीजन में चलने वाली विंड को क्या कहते हैं, हॉट एंड ड्राई विंड, नॉट कूल विंड. हॉट एंड ड्राई विंड इन अ समर सीजन, दैट इज कॉल्ड अ लू. ठीक है. एवरग्रीन फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट विच रिटेन ग्रीन फोलाइट थ्रू आउट द ईयर. यानी कि वो फॉरेस्ट जो सदाबहार सारे साल, पूरे साल एवरग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं.
Tropical deciduous forest, फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, ये उस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जो कि अपनी शेड्स को यानी कि अपनी पत्तियों को एक पर्टिकुलर सीजन्स में गिरा देते हैं. नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन विच ग्रो ऑन इट्स ओन विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम ह्यूमन बींग, यानी कि वो वेजिटेशन जो बिना एनी इंटरप्ट के ह्यूमन बींग की बिना किसी हेल्प के अपने आप ही ग्रो हो जाए, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, areas that are created to protect certain species of animal. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसा है बेटा? इट्स लाइक अ नेचुरल होमेज या नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स के लिए ऐसे क्रिएट किया गया एक ऐसा एरिया जो कि गवर्नमेंट बनाती है, किसके लिए? एनिमल्स के लिए, और उन्हें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा फील कराती है कि वो फॉरेस्ट में ही है. नेचुरल पार्क, एरिया रिजर्व फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. तो नेचुरल पार्क भी क्या है? ये भी एक नेचुरल ही वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को संग्रह करके रखने वाला एरिया. दिस इज नेशनल पार्क. So these keywords you have to do in your notebook with the clear handwriting. Thank you so much, students. We can meet in the next class.